Hello to all class 9 students. And class 9 we are in lesson number 15 of economic applications, and this is infrastructure of Indian economy. So we'll be moving ahead with today's topic problems pertaining to lack of social infrastructure. So problems of social infrastructure. Now we are going to read what are the problems which are related to social infrastructure. So the first one is shortfall of health infrastructure. So they are saying shortfall of social of what shortfall of health infrastructure. Now what does this mean? This means that the health infrastructure, now when I say health infrastructure, what does it involves? It is the components could be are hospitals, dispensaries, doctors, nurses, medical equipments, then medicines and all that stuff which are required for health, for taking care of the health infrastructure. Now these all things are very poor, in very poor condition. So this is one of the most important thing which has to be kept in mind. They say that rural areas, especially the rural areas, that is the village areas in India, are having a really less number of doctors, very less number of government doctors, because the doctors after completing their MBBS and MD, they don't want to go to the rural areas because rural areas are short of facilities. That's why people do not want to go there. And people after becoming doctor and after getting the government job, they are not interested in going to the village areas, because there they do not get the facilities like drinking water, schools, colleges, market, and these kind of facilities they don't get there. So they are not interested in, the doctors are not interested in going to the rural areas. That is the major problem with Indian economy, that the rural areas have very less number of doctors and nurses, hospitals, dispensaries, which is really very concerning, and this is spoiling the status of Indian health system, especially in the rural areas. Right. The next one is your inadequate access to safe drinking water and sanitation facilities. Okay. Uh, Lack of safe drinking water and sanitation. Now, safe drinking water in India is not in good condition. Now, many people they do not get safe drinking water, clean drinking water. Now, what happens when you don't get clean drinking water? If you don't get clean drinking water, you get ill. So, in India, the one of the major reason why people get ill, or what is the major reason for the poor health of the people, that is the major reason is the poor drinking water, the dirty drinking water. It is contaminated water with bacteria and viruses, and people are drinking it. There is no reach, no access to clean drinking water to the people. Now they say that the in 1980 rural sanitation covered around was estimated at 1% and reached 95 in 2018. They are saying around in 1980 the rural sanitation was very poor in around 1980. Now it has improved to very good extent in 2018 by 95%. Now when we talk about sanitation, what does it mean? Sanitation means साफ सफाई. So rural India में साफ सफाई की कंडीशन बहुत खराब थी 1980 तक, लेकिन अब क्या है, वहाँ पे काफ़ी साफ सफाई आपको देखने को मिल सकती है. Right now India as far as we talk about the clear drinking water, so in the government is has taken a lot of steps to cater the needs of the people for clean drinking water. Why? Because clean drinking water and sanitation are the basic things, or basic rights, or right to life, which everybody needs. So at present the safe drinking water condition is quite poor in India, pretty poor in India, but soon the government is taking steps, and soon the condition will be improved. Now the third is low gross enrollment ratio in higher education, that is GER in higher education. Now what does this mean? This means that the people in India, especially in the rural areas, are not
applying for the higher education. After doing their 10th and 12th, they are not moving forward for the higher educations. One of the major reasons for this is this, that in the rural areas, there are no colleges in the rural areas, and in case somebody wants to study and somebody wants to go for the higher education, they have to move to the cities, or they have to cover very long distances, which again becomes problem for the people who are living in the rural areas. So they try to say that uh, states are trying to set up educational institutes. अब आज गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स मतलब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को सेटअप कर रही है, शहरों के अलावा गाँव में भी सेटअप किया जा रहा है. एंड एक्सपेंशन ऑफ कॉलेजेस टू अचीव अ टारगेट ऑफ 1 लाख स्टूडेंट्स. और ये कोशिश की जा रही है कि कॉलेजेस को बढ़ाया जाए ताकि कम से कम 1 लाख स्टूडेंट्स हर साल क्या किए जा सके, इंक्रीज किए जा सके. डिस्पाइट द लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन वेरियस स्ट्रीम्स, देयर इज नो मेजर शिफ्ट इन द प्रोडक्टिविटी एज स्किल्स एंड टैलेंट. दे आर सेइंग कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पढ़ भी रहे हैं, अगर कुछ टेक्निकल चीज़ भी पढ़ रहे हैं, जैसे इंजीनियरिंग भी पढ़ रहे हैं या बाकी की कोई और चीज़ भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके अंदर वो टैलेंट और वो स्किल्स देखने को नहीं मिल रहे हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न कि लोगों का जो ग्रॉस एनरोलमेंट वो है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, वो बहुत क्या पुअर है. ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन मतलब कितने लोग हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं. पुअर एरियाज़ में या रूरल एरियाज़ में अगर हम देखें तो ये रेशियो बहुत कम है, क्योंकि लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि गाँव में क्या है, गांव में आपके स्कूल और आपके बड़े बड़े कॉलेजेस वगैरह या कॉलेजेस नहीं है, जिनकी वजह से वो आगे की एजुकेशन नहीं लेते हैं. फोर्थ इज ड्रॉप आउट रेट एट प्राइमरी लेवल. ड्रॉप आउट रेट ना, मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज ड्रॉप आउट रेट. आई टोल्ड यू व्हाट इज ड्रॉप आउट रेट. ड्रॉप आउट रेट मीन्स जब कोई अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दे तो उसे हम ड्रॉप आउट कहते हैं. ठीक है, ड्रॉप आउट कहते हैं. तो भारत में जो चौथी प्रॉब्लम है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, वो क्या है कि लोगों का जो ड्रॉप आउट रेट है, बच्चों का जो ड्रॉप आउट रेट है वो बहुत ज़्यादा है. दैट मीन्स चिल्ड्रन एट अ वेरी अर्ली एज, प्राइमरी मतलब मेन जो क्लासेस होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इन्हीं में ही बच्चे क्या करते हैं, अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं. या तो उनके माँ बाप उनसे काम करवाना चाहते हैं, या तो वो लड़कियां होती है और उनको बोला जाता है तुम पढ़कर क्या करोगी, या तो उनके पास पैसे नहीं होते देने के लिए और बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं. बिकॉज द थिंकिंग ऑफ द पुअर पीपल इज दिस कि बच्चा पढ़ के क्या करेगा, काम करेगा तो कम से कम पैसे तक कमाएगा. तो व्हाट इज डन एक्चुअली, the children are told not to study. So they are saying primary education in India is ridden with too many problems. Large number of primary schools has no building. बहुत सारे schools की problems है कि स्कूल बिल्डिंग अच्छी नहीं है, या ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी नहीं है, या यूरिनल्स नहीं है. यूरिनल्स मतलब टॉयलेट्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी, फर्नीचर, इन सब की भी प्रॉब्लम है. सो लार्ज नंबर क्या करते हैं प्राइमरी स्कूल में टीचर्स, बच्चे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं एजुकेशन को, बीच में ही छोड़ देते हैं. ठीक है, और यहाँ तक कि छोड़ देते हैं और क्या करते हैं, घर में भी नहीं रहते, वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं. एट अ वेरी अर्ली एज दे स्टार्ट डूइंग सम वर्क. सो द ड्रॉप आउट रेट इज वेरी हाई एंड मेनी स्कूल्स आर इवन विदाउट टीचर्स. ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा हाई है, जिसका एक रीज़न क्या है, स्कूल में टीचर्स ना होने का भी है. बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं गाँव की तरफ आप जाओगे तो यू विल सी दैट देयर आर नो टीचर्स इन द स्कूल्स. गवर्नमेंट हैज़ मेड एफर्ट्स, गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डाल रही है कि ड्रॉप आउट रेट्स को क्या किया जा सके, कम किया जा सके. तो अगेन आई एम टेलिंग व्हाट आर ड्रॉप आउट रेट्स. ड्रॉप आउट रेट्स मीन, ड्रॉप आउट मतलब जब लोग या कोई बच्चा अपनी एजुकेशन बीच में ही छोड़ देता है. तो इंडिया में ड्रॉप आउट क्या है, बहुत ज़्यादा है. Now the fifth one is a growing number of homeless Indians. Growing rate of homeless. Now in India you will see that there are many people those do not have home. So people, they are living either in some rented houses, or they are forced to live in on the roads, or in some vacated or vacated buildings. So they are living in very poor conditions. So a homeless person is the one, first of all, who is a homeless person. A homeless person is one who cannot afford housing or are unable to maintain a regular and safe shelter. जिनके पास घर नहीं होता है, या जो रेगुलर घरों में नहीं रहते हैं, कभी रहे कभी नहीं रहे, कभी सड़क में रहे कभी कहीं रहे, तो उनको हम बोलते हैं होमलेस. सो इन इंडिया देयर आर अबाउट 78 मिलियन होमलेस पीपल. इंडिया में बोल रहे करीब 78 मिलियन होमलेस पीपल है.
ठीक है, हम ही बोल रहे हैं कि हम जो बहुत विकास हो रहा है इंडिया में, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, लेकिन अभी भी आप देखोगे कि इंडिया में बहुत सारे लोग क्या है, होमलेस हैं। ठीक है, होमलेस इज अ रिजल्ट ऑफ लार्ज फैमिलीज। होमलेस किसका रिजल्ट होता है, क्यों होते हैं होमलेस? बिकॉज ऑफ लार्ज फैमिलीज माइग्रेटिंग फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन सिटीज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कई बार क्या होता है, गाँव से लोग स्पेशली क्या करते हैं, गाँव में काम नहीं होता है, दे डोंट हैव वर्क टू डू, देयर आर नो फैक्ट्रीज, नथिंग, सो दे मूव टू द towns and cities, and there they obviously don't have place to live and they become homeless. होमलेस होने के दो मेजर कारण है, एक तो लार्ज फैमिलीज, दूसरा काम ना होना गांव में। अगर गांव में काम मिलना शुरू हो जाएगा लोगों को, तो लोग क्या करेंगे, अपने गांव को छोड़ेंगे नहीं और होमलेस नहीं होंगे। लोग गांव से शहर में तो आ जाते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता है, काम नहीं होता है, तो वो मजबूर हो जाते हैं कि एक होमलेस बन के रह जाए। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के इंडिया में। ठीक है, नाउ विल बी स्टार्टिंग विद इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आती हैं, उसके बारे में हम वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इट ऑल्सो। तो नाउ व्हाट आर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर? सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इकोनॉमिक infrastructure. I told you earlier also that there are two types of infrastructures in your syllabus. First is a social infrastructure. Social infrastructure is that infrastructure which is basically directly connected with people and indirectly connected with production. So social infrastructure not directly is related with production, but yeah, it is related with people. Now see, economic infrastructure is directly related with production, consumption, and distribution. Right? So all those things which help in production, distribution and consumption are known as economic infrastructure. Now economic infrastructure includes transport network, communication network, power, irrigation वगैरह. The examples could be transport, right? Irrigation मतलब जो पानी से हम सिंचाई करते हैं पूरे खेतों में, ट्यूबवेल वगैरह से, that is all irrigation system. Then communication, banking, इंश्योरेंस और बहुत सारी चीजें। नाउ व्हेन वी स्टार्ट विद, क्योंकि ये सारा बहुत ज्यादा सिलेबस में, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं आएगा आपका, तो पर फिर भी हल्का सा बताना बहुत जरूरी है। सो इफ यू टॉक अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ऑल दोस थिंग्स व्हिच हेल्प यू टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हम ट्रांसपोर्ट से सिर्फ गुड्स ही मूव नहीं करते हैं, इंसान भी मूव करते हैं, राइट? अब क्या है, वेल नीटेड transportation network helps the economy to develop in many senses, in many ways. Like if good transportation facilities are there, raw material can be brought to the industries and final goods can be taken to the market. अगर अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, तो जो कच्चा माल होता है वो आप इंडस्ट्रीज में ला सकते हैं, और बना बनाया माल, रेडी माल को आप मार्केट तक पहुंचा सकते हैं। लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेबर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, right? So well knit and coordinating transport system plays an important role in the process of sustained economic growth in developing countries like India. I told you this also. तो transportation system basically आपका चार तरीका है: लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। आप बोलोगे पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट क्या होता है? तो चीजें पाइप से भेजी जाती है, जैसे कि गैस हो गई या पेट्रोल हो गया, ठीक है, इस तरह की चीजें हो गई, या आयरन ओर हो गया। ये सारी चीजें एक जगह से दूसरी जगह लंबे लंबे पाइप्स बिछाए जाते हैं, वहां से भेजी जाती है। तो ये भी एक तरह का ट्रांसपोर्ट है। तो लैंड ट्रांसपोर्ट, वो सारी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स जो लैंड में चलती है, जैसे कार हो गया, ट्रेन हो गई, बसेस हो गए, ये सब चीजें लैंड ट्रांसपोर्ट है। वाटर ट्रांसपोर्ट आपका शिप्स वगैरह से होगा, पानी के द्वारा होगा। एयर ट्रांसपोर्ट एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर्स हो गए। एंड देन पाइपलाइन में आपकी, मैंने आपको बताया, गैस अगर आपको पास ऑन करनी है, या पेट्रोल करना है, या आयरन ओर करना है, तो ये सब किससे होती है? इनसे पास ऑन होती है। नाउ अगेन द सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें कि एडवांटेज क्या है ट्रांसपोर्टेशन के, तो दो की है हमने, एंड वी हैव डन टू ओनली, एंड देयर इज नो नीड टू रीड इट मच। सो इफ यू जस्ट टॉक अबाउट कि क्या एडवांटेज है ट्रांसपोर्ट की, तो रिडक्शन इन स्केर्सिटी ऑफ कॉस्ट,
ठीक है। तो आपका जो गुड्स है, गुड्स एक जगह पे ज्यादा उगते हैं, दूसरी जगह पे कम। लाइक सी इफ यू सी जम्मू कश्मीर में आपको बहुत एप्पल्स मिलेंगे। तो जम्मू कश्मीर में बहुत एप्पल होता है, लेकिन देहरादून में नहीं होता है या केरल में नहीं होता है। तो क्या हो रहा है, देहरादून या केरला में अगर एप्पल्स नहीं होते हैं तो यहाँ पे फिर भी हम एप्पल्स खाते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि बाहर से क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन की मदद से, JNK से ट्रांसपोर्टेशन की मदद से वी आर गेटिंग एप्पल्स हेयर ऑल्सो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो स्केर्सिटी है गुड की, जो कमी है गुड्स की, पूरी हो जाती है। देन ग्रोथ ऑफ फॉरेन ट्रेड, नाउ विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ओनली, जो हमारा फॉरेन ट्रेड है उसकी ग्रोथ क्या हो पा रही है, बढ़ पा रही है, उसकी ग्रोथ हो पा रही है। क्योंकि हम आज की डेट में फॉरेन कंट्रीज से भी क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल with the help of train, with the help of other things, right? With the help of air transport. So foreign trade नहीं होता अगर हमारे पास पानी के जहाज, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स वगैरह नहीं होती। तो आई टोल्ड यू देयर इज नो नीड टू डू मच। तो सेकेंड इज रेल ट्रांसपोर्ट। रेल ट्रांसपोर्ट में आपका क्या आएगा, रेल ट्रांसपोर्ट में आपको मालूम है कि आपका ट्रेन्स आती हैं, तो इससे हम सारा का सारा जो ट्रांसपोर्ट करेंगे वो इसमें आएगी। एडवांटेज क्या हो सकती है रेल ट्रांसपोर्ट की? व्हाट आर द गुड थिंग्स अबाउट रेल ट्रांसपोर्ट? रेल ट्रांसपोर्ट की जो गुड थिंग्स है वो ये है कि लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर्स कैन ट्रेवल एट अ टाइम एंड लार्ज नंबर ऑफ गुड्स ऑल्सो कैन बी टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो बहुत सारा सामान एक साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, और बहुत सारे पैसेंजर्स भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो अगर आप कुछ और भी बोलना चाहते हैं तो ये आपको हेल्प करेगा ट्रेड में, ये आपको हेल्प करेगा अलग अलग स्टेट्स को कनेक्ट करने में। तो है बहुत सारे, पर ये आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए मैं इसको बहुत गहराई से पढ़ा भी नहीं रही हूँ। पर ये है कि आपको कुछ बेसिक चीज़ें तो पता होनी ही चाहिए। ठीक है। अब हम रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करें तो आपको पता है रोड ट्रांसपोर्ट क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, रोड ट्रांसपोर्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पोटेंट बेस फॉर रैपिड ट्रांसपोर्टेशन। ना अगर आप देखो तो रोड ट्रांसपोर्ट आप भी यूज़ करते हो। आप जब स्कूल आते हो तो आप रोड ट्रांसपोर्ट से आते हो। ठीक है। चाहे अपनी कार से आ रहे हो, चाहे आप स्कूल बस से आ रहे हो, चाहे विक्रम से आ रहे हो, चाहे सिटी बस से आ रहे हो, तो अगेन यू आर यूजिंग रोड ट्रांसपोर्ट आउट देयर। उसकी भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, राइट। देन इफ यू मूव फर्दर तो आपके पास हो सकते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट है, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट है, एडवांटेज इंपॉर्टेंट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट्स है। दिस ऑल हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम योर सिलेबस, नथिंग मच टू रीड अबाउट। ठीक है। एयर ट्रांसपोर्ट को हम सिविल एविएशन भी कहते हैं। प्रॉब्लम्स और डिसएडवांटेज ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट की डिसएडवांटेजेस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, ये सारी चीज भी हैं जो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट के बारे में बताते हैं आपको। पाइपलाइन फॉर्म्स एन यूनिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। दे कैन मूव लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ कमोडिटी, मेनली फ्लूइड्स। फ्लूइड्स क्या होते हैं, जो बहने वाली चीजें होती है, उनको आप पाइपलाइन से ट्रांसपोर्ट कर सकते हो ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस एट रिलेटिवली लो कॉस्ट। सो अगर हमको पेट्रोल एक जगह से दूसरी जगह भेजना है और हम चाहते हैं कि हमारा कॉस्ट कम हो, तो हम पाइपलाइंस के थ्रू भेज सकते हैं। तो इंसानों को पाइपलाइन से नहीं भेजते, हम गुड्स को भेजते हैं, स्पेशली वो सारी चीजें जो बह सकती हैं। ठीक है। द ऑपरेशंस एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली, ये इजी टू ऑपरेट है और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। क्योंकि अगर आप पाइपलाइंस के थ्रू जमीन के नीचे से पाइप बिछा करके पेट्रोल को भेज रहे हो या गैस को भेज रहे हो, तो इससे हो क्या रहा है, इससे ये हो रहा है कि एनवायरमेंट को भी कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है। तो इस तरह की चीजें हैं। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पोस्टल सर्विसेज इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ योर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। टेलीकम्युनिकेशन एंड इंटरनेट इज ऑल्सो एग्जाम्पल। एनर्जी और पावर हो गया, थर्मल पावर, इस तरह की सारी चीजें आर द एग्जाम्पल्स। दिस हैज बीन अ बिट removed from your syllabus, but just to have an idea about this, I am telling you about these all things. We are just discussing about these all things. तो these all things है जो आपको दी गई हैं कि इरिगेशन क्या रोल प्ले करता है और इरिगेशन क्या होती है। तो इरिगेशन आपको पता है वो सारे तरीके हैं जिससे हम अपने खेतों को चारते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे इफ यू सी की इरिगेशन गांव के एरियाज में देखें तो इरिगेशन सिस्टम बहुत पुअर है। देयर स्टिल यू डू नॉट हैव द ways or methods to irrigate your fields, so the farmers in the rural areas are still quite dependent on the rainfall, right? If rainfall is good, the crop will be good. If rainfall is not good, the crop will not be good. That is the major issue. Now these all things we are going to discuss gradually in the other class also, and telecommunication, internet, हम इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। बट ये अगर हम ना भी पढ़े तो कोई इसका कोई मेजर इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सिलेबस से वैसे डिलीट हो चुका है। तो स्टिल आपके नॉलेज के लिए आई विल बी कीप टेलिंग यू दीज थिंग्स। नाउ आई होप यू पीपल आर डूइंग योर नोट्स एंड
keep sending you my notes also. My computer is not working right now, but that's why I'm not able to prepare PDF for you. PDF बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इसी वजह से. But from the 16th chapter जो कि इसके बाद start होगा, 16th chapter is going to be your this chapter we're going to start after this, and that is consumer awareness. Consumer awareness is a very interesting chapter, and then we'll start, and from consumer awareness I will start providing you with the notes. By that time I'll just get it mend, my computer I'll get it mend. So I'll see you soon in the next video. Till then, take care of yourself, stay at home, stay healthy.